السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، صدق اللہ العظیم۔ حضرات، سہ روزہ بین الاقوامی مذہبی کانفرنس برائے امن عالم کا آج دوسرا اجلاس ہے، جس کا مقصد ہے امن، شانتی، پیس ہندوستان کی سرزمین پر امن اور شانتی کو قائم کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر بڑے بڑے صوفیاء کرام، اولیاء عظام، صوفی منش پرکٹ ہوئے، تشریف لائے، جن کا مقصد کہ تمام انسانوں کو، تمام مانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لائے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اس سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود عرب کی سرزمین پر آیا، جس کا مقصد تھا، اور آپ نے جو ہے ایک نصب العین دیا، جس کو علامہ اقبال بھی جو ہے گویا کہ ایک سمندر کو کوزے میں رکھ کر آپ نے بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ٹھیک اسی طریقے سے بانی تحریک سید السادات الحسنی والحسینی حضرت مولانا سید صدیق حسین صاحب قبلہ قدس سرہ العزیز المعروف بصدیق دینداد چند بشوشہ صاحب قبلہ عالم، آپ جو ہے اس کی بنیاد ہندوستان کی سرزمین حیدرآباد دکن میں آپ نے رکھا، جس کا مقصد ایک ہے کہ تمام انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے۔ اب تمام انسان، وہ کون سا اصول ہے، وہ کون سا نظم ہے، وہ کون سا طریقہ ہے جس کی بنیاد پر تمام انسان ایک پلیٹ فارم پر آ سکتے ہیں؟ وہ اور کوئی نہیں بلکہ جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام، اسلام کے حقائق، اسلام کی صداقت کو لے کر جو ہے پھرنے کی ضرورت ہے۔ اسی بدولت سے تمام ہندوستان کی سرزمین پر امن و شانتی کا گہوارہ ہندوستان بن جائے گا، امن و شانتی کا استھاپن ہوگا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جیسا کہ اولیاء کرام، بزرگان دین، صوفی سنت منش ہندوستان میں آئے، کبیر داس بھی کہتے ہیں کہ بھائی رو دو جگدیش کہاں سے لائے؟ کون ہے جو من بھائے؟ وہی مہادیو، وہی محمد، وہی محمد، وہی مہادیو۔ اور شری رام چندر جی آپ فرماتے ہیں، دیوا دیوا مہادیو سرشٹی سمہار کار کا، کرونا قیدہ نات ود میں مکتی سادھنم۔ اے دیووں کے دیو، اے مہادیو، یہ مہادیو کون ہے؟ المختصر یہ کہ مہادیو جس کو ہندوستان کی سرزمین میں کہا جاتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ کل کی اوتار کو کہا جاتا ہے، انتم رشی کو کہا جاتا ہے، نراشنس کو کہا جاتا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفاتی نام ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر، ہندوستان کی ویش شاستر کتابوں میں جو ہے 1000 ناموں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا گیا ہے۔ انہی 1000 ناموں میں سے ایک نام جو انتم رشی ہے، جگت گرو ہے، کل کی اوتار ہے، نراشنس ہے۔ تو اسی طریقے سے مہادیو بھی آپ کا صفت ہے، اور اسی طریقے سے بابا گرو نانک دیو جی آپ بھی فرماتے ہیں، اول اللہ نور پایا قدرت دے سب بندے، ایک نور تے سب جگ اپجا، کون پلے کون بندے۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور کو بنایا، اپنے
अपने नूर से तख्लीक कायनात किया। जन्म साकी भाई बाला में बाबा गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, जिसे नूरे मोहम्मदी डिठे नबी रसूल, नानक कुदरत दे खुदी गए सब भूल। मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से कई अंबिया को पैदा होते देखा। ऐ नानक, तो खुदा की कुदरत देख के अपनी खुदी को भूल गया है। ठीक इसी तरीके से पंजाब की सरजमीन से बड़े बड़े सूफिया कराम, औलिया कराम जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में फरमाते हैं, लखा लोग आए जमाने ते महबूब खुदा जिया कोई नहीं। लखा लोग आए जमाने ते महबूब खुदा जिया कोई नहीं। लखा सोने बिरबल के बंदे ने उदे खाक पा जिया कोई नहीं। सानू जो है तेना लब दिया आप गवाज, सानू अपने दा कोई खबर नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर जब एक मुसलमान जो है आपका मानने वाला कुर्बान हो जाता है, उसकी कोई चीज की परवाह नहीं करता। गोया कि सादे नबी दी जबान, सादे वास्ते कुरान, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कलाम है, आपका जो फरमान है, आपके मानने वाले के लिए जो अल्लाह का कलाम है, कुरान का कलाम है। तो ठीक जो है हजरत जो है मीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह जो है पंजाबी जबान में फरमाते हैं कि मुख चंदे बदर शेशानी है, मत्थे चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फत अख मस्तानी है, मखमूर अखे हनमत बरिया। सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का, उस सूरत नु मैं जान अखा की जाने जहान अखा, सच अखा ते रब दी शान अखा, जिस शान तो शान है सब बनिया। सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का, दो अबरू कोस मिसाल दी सन, जिथि नोक मिजादे तीर छुटन, लब सुर्ख अखा कि लाली मन, चिटे दंद मोती दिया हल्लड़ के लड़िया। किथे मेहर अली किथे तेरी सना, हजरत मेहर अली शाह फरमाते हैं, आप फरमाते हैं किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखें किथे जारिया। सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का। बाबा बलह शाह फरमाते हैं, आपने फरमाया कि फलक खूबसूरत सजाया ना हुंदा, किसे शायद भी इत्थे विसाया ना हुंदा, ना ये अर्श कुर्सी ना ये चंतारे, शबो रोज ते ना हुंदे नजारे, न जिन्नो बशरते न कोई परिंदा, न जिन्नो बशरते न कोई परिंदा, हयाती ममाती न मोया न जिंदा, न हूरा दे किस्से न आदम न हवा, न याकूब यूनुस न यूसुफ ज़लेखा, न तख्ता दे ताजा दे सुल्तान हुंदे, न महल्ला दे वाली न दरबान हुंदे, न मिलदी किसी नो कदे जिंदगानी, हवाएं न हुंदी न हुंदा ये पानी, ये अर्शो फरश्ते न खाकी न नूरी, जमाने ते कुछ भी न हुंदा ज़हूरी। ये जमाने में अगर कोई चीज पैदा न हुंदा, आखिर में फरमाते हैं किसी चीज दवी इत्ते साया न हुंदा, जे रब ने मोहम्मद बढ़ाया न हुंदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बाबत जो है बलह शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बयान किया गया है, आपके शान में बयान करते हैं। आगे फरमाते हैं कि जिस तरीके से हजरत हलीमा सादिया का वाकया कि आप जो है मक्के में आए, इतना वक्त नहीं दिया गया तफसील से बयान कर, मुख्तसर अशार की शक्ल में आपके सामने पेश करता हूँ। ज्ञानी जी तुझे सामने जो है अशार जो है बयान किया है। आप फरमाते हैं कि जो है हजरत हलीमा सादिया का वाकया कि जब आप मक्के में आए और सारी बनी सादिया औरतें अपने जो है साथ मक्के दे वड्डे वड्डे उमरिया दे बच्चे अपने नाल ले जा रहा, लेकिन हजरत हलीमा सादिया अपने नाल जो है 3 बच्चे नु लेके जा रही हैं। तो फरमान दिया है कि कभी उड़ती सी कभी बिंदी सी, ओ डिगदी रहंदी रहंदी सी, उन कोल न कोई बिठांदा सी, उन नाल न कोई रिलांदा सी, ओ दी लंगदी किवी दिहाड़ी सी, जिदी डाची सब तो मारी सी, उस डाची दी जड़ी माई सी, वो दा नाम हलीमा दाई सी। आखिर विच मक्के आई सी, पीछे आकर वो पछताई सी, हर बूहा उस खड़काया सी, उन खैर किसे ना पाया सी, दर दर दी बड़ी सवाली सी, ओ दी झोली फिर भी खाली सी, जब सारे पासे रह गई है सरकार दे बूहे बह गई है, आखिर वो बूहा मिली आए, जिदो खाली न कोई मुड़ी आए, रहमत दा झूला झुली आए, सरकार दा बूहा खुली आए। एक लौंडी बाहर आई है, दाई वल छाती पाई है, उन बाहर
हवा नप उठाया है, पहले सीने नाल लगाया है, नाले मुंह ये फरमाया है, कहंदी फरमाया हलीमा सादिया फरमान दिया है सोनिया अब मैं तेनों अपने नाल ले जावा। हलीमा सादिया फरमान दिया है ए सोनिया आ तेनों मैं अपने नाल ले जावा, आ तेनों नाल ले जावा मैं, नाले नूरी मुख विखावा मैं, साडे वेड़े हो चंचड़िया है जिदा चन्न भी कलमा पढ़ी जाए। गई नाल हलीमा दाईए जद नजर सोने ते पाई है, दिल फड़ के अपना बह गई है, सरकार नु तकदीर रह गई है। आज जाग गया वक्त हलीमा दा, मिलिया लचपाल यतीमा दा, फिर सोना लाया सीने नो रहमत दे पाक खजीने नो। जिस वक्त हजरत हलीमा सादिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ लेकर आप चलते हैं, आगे फरमान दिया है मिली दिल नु बड़ी तसल्ली है, सरकार नु लेके चलिए। जदों पैर कली विच धरिया है, रहमत नाल वेला पड़िया है, पई लोड़ी आप सुनान दी है, नाले सदके वारी जान दी है, बनी साथ दिया जो दाया ने, चल कोल हलीमा आया ने, सब पुछन तू बाहर आंदी नहीं, सानू शक्ल विखांदी नहीं, कि मैं अपना वक्त लगानी है, कि तो खांदी है, कि तो पींदी है, बोली है ये हलीमा दाया नो, खैरियत पुछन आया नो, न मैं बाहर आंदिया, न तुहानो शक्ल विखानी आ। आगे फरमान दिया न खांदी आ न पींदिया, जानदी नहीं किसी भी पासे में, बस वेड़े विच घूम लेनी आ, जद मैनो बुक लग जांदी है, सरकार दमू चुम लेनी आ, धन भाग जरूरी दाईदा, मिलिया महबूब खुदाईदा। ये इस तरीके से जो है पंजाब की सरजमीन से जो है औलिया कराम ने पेश किया। ठीक इसी तरीके से हजरत हाजी बाबा गुरु नानक जी रहमतुल्लाह अलैह हैं। हम सूफिया कराम बुजुर्गान दीन के जो है तरीके से, किस तरीके से हम बाबा नानक को सिर्फ बाबा नानक नहीं कहते, बल्कि आपने 2 मरतबा जो है मक्के मदीने गए और हज करे, 1 साल मक्का मुकर्रमा में आपने कयाम किया और आपके साथ भाई मर्दाना साहब थे। ये भाई मर्दाना कौन है? अगर हम जो गुरमुखी जबान उठाकर देखते हैं, भाई मर्दाना साहब एक मुसलमान बुजुर्ग सैयद रुकनुद्दीन आपके साथ जो है बाबा गुरु नानक मक्के मदीने को गए तो जन्म साखी मतबुआ 1902 सफा नंबर 177 में फरमाते हैं ऐ मर्दाना जो शख्स अल्लाह व रसूल के घर की ज़ियारत करायत से करता है वह अल्लाह व रसूल की निगाह में चोर है। ऐ मर्दाना खूब याद रखो जो काबतुल्लाह को ना माने वो काफिर है, खाए वो कोई भी हो। इसी तरीके से सूफी इकबाल साहब, अल्लामा इकबाल साहब जो है बाबा गुरु नानक जी के शान में फरमाते हैं कि फिर उठी आखिरी सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। ये तौहीद की सदा को बुलंद करने वाला पंजाब की सरजमीन से कोई व्यक्ति जो है उस जमाने में 1469 में बाबा गुरु नानक जो है ननकाना साहब में पैदा हुए, अपने ननिहाल में पैदा हुए। एक बात बयान करता चलूं, नानक जो है ये आपका जो है नाम क्यों पड़ा? इसलिए कि आप अपने ननिहाल में पैदा हुए थे। गुरुमुखी जबान में कहा जाता है नानक उसका नाम जो अपने ननिहाल में जब बच्चा पैदा होता तो प्यार से लोग उसको नानक कहते। तो बाबा गुरु नानक जी रहमतुल्लाह अलैह अपने ननिहाल में पैदा हुए। दाया कौन थी? दौलता भी, जो सबसे पहले खिदमत करने वाली। तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, पंजाब की सरजमीन से तौहीद को लेकर आगे बढ़ने वाला। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम करने के लिए जब आप जो है आगे बढ़ते, ये तौहीद है क्या? हकीकत में अरबी शब्द है, इसी को गुरुमुखी जबान में एक ओंकार कहा जाता है। गुरुमुख जपू जी में फरमाते हैं जो है पढ़ा जाता है एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजोनी से बंकरू प्रसाद जब आज सच जुगात सच है भी सच ना हो से भी सच आग निरंजन निर्मल सोई अवर न छाड़ा दूजा कोई एक अंकार वसे मन भावे हूँ मैं गर्भ गोविंदा अमृत पिया सदगुरु दिया अवर न छाड़ा दुअतिया एको एक स्वापर परम्पर पर खजाने पाइंदा साहेब मेरा एको है भाई एको है तिसे शरीक नदी से कोई आप परम्पार आए। ये क्या कि एक ओंकार क्या है? तौहीद इसी को अरबी ज़बान में कहा जाता है। उस एक ओंकार सतनाम उसका सच्चा नाम है और निर्भव निर्वैर है। वो उसको किसी चीज का खौफ नहीं है,
हर चीज से वो परे है। उसी को कुरान में जो भी बयान किया गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। आगे में जो है कहा जाता है जो है नतिस मात पिता शुद्ध बंधव नतिस काम न नारी, उसके माता पिता कोई नहीं है, वो निराकार निरंजन है। उसी को कुरान में कहा गया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ठीक इसी तरीके से बाबा गुरु नानक जो है, आप मक्के मदीने को गए, जाने के बाद गुरुमुखी जबान में बयान किया गया है कि बाबा फिर मक्के गए, नील विस्ता धारे बंधारी असाहब किताब कच कूसा बांग मसल्ला धारी, बैठा जाए मसीत जितने हाजी हज गुजारी। जब आप मक्के मदीने को गए तो हज के अरकान अदा करने के बाद आप उसी जगह जाकर बैठते जहां हाजी लोग बैठते हैं। उसके बाद वापसी में आप बगदाद को गए, जन्म साकी भाई वाला सफा नंबर 203 में कहा गया है कि जो है कन अंगुलियां पाए तब नानक दती बांग, जितनी उम्मत जमा सी सुन हुई सुनकर चांग। कि बाबा गुरु नानक देव जी रहमतुल्लाह अलैह जब बगदाद को पहुंचे तो आप मस्जिद में जाकर अपने कानों में अंगुलियां डालकर अजान दिए। उस वक्त जितने मुसलमान थे सुनकर हैरान रह गए। इसी तरीके से आप जो 10 साल तक मुस्लिम ममालिक में आपने सफर किया, बगदाद में आपका छिल्ला है, अजमेर में आपका छिल्ला है, जो है सुल्तानपुर में आपका छिल्ला है, हजरत अब्दुल शकूर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में आपका छिल्ला है, और उसके बाद जो है फिलिस्तीन में आपका छिल्ला है। यही नहीं बल्कि आपको नानक शाह कहा जाता है। सूफियाए कराम की जबान में नानक शाह क्यों कहा जाता है? इसलिए कि आप सिलसिले जो है जिंदा शाह मदार से वाबिस्ता हुए थे, मदारी सिलसिला से वाबिस्ता हुए थे। आपका नाम जो है नानक के साथ साथ नानक शाह भी पड़ा। और यही नहीं बल्कि जो है आपकी तारीख में आता है कि 10 साल तक हजरत फरीद सानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिलकर, एक दो फरीद हैं जो लोग वाकिफ नहीं है, शेख फरीद कहते। शेख फरीद साहब का जमाना आपके जमाने से 200 साल पहले का जमाना है, और एक शेख फरीद सानी है जो हजरत बाबा गुरु नानक के जमाने में थे। आपके साथ मिलकर 10 साल तक आपने जो है अल्लाह के पैगाम को, वाहे गुरु के पैगाम को लेकर आम करे, और तमाम बड़े बड़े जो है मनादिर और उसके बाद मजहबी स्थान पर गए। किस लिए गए? ताकि तमाम मानव को, तमाम इंसानों को एक प्लेटफार्म पर लाया जाए। इसीलिए जो है एकता, ये पैगाम हकीकत में अगर देखना चाहते, आज सिख धर्म का जो मरकज है, जिसको हिंदुस्तान की जबान में या यहाँ के अंग्रेज की जबान में हम सूफिया लोग उसको गोल्डन टेम्पल नहीं कहेंगे, क्योंकि ये अंग्रेज का दिया हुआ नाम है। हम गुरुमुखी जबान में कहते हैं कि हरमंदर साहब, सुनहरी गुरुद्वारा, हम गोल्डन टेम्पल नहीं करेंगे। तो ये सुनहरी गुरुद्वारा हरमंदर साहब की न्यू बुनियाद रखने वाले कौन है? अगर इतिहास ही अगर देखना तो इस हिसाब से देखें। साईं मियां मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, उस जमाने में 300 मुस्लिम लोग आकर जो है हरमंदर साहब और सुनहरी गुरुद्वारा की आप बुनियाद रखे बनाए। बहादुर शाह जफर 500 बीघे जमीन आपने देकर जो उसको आबाद किया। इसीलिए 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा, कोई भी सिख उस वक्त तक हमारे पास ना आए जब तक कि वो किरपान ना रख ले। तो किरपान क्यों रखना हकीकत में? इसलिए जुल्म तशद्दुद के खात्मा के लिए। आज जो लोग जो नहीं समझते गुरु गोविंद सिंह के वाकया और जो है मुगलिया जमाने के वाकया को जो पेश करके बताते कि मुसलमान दुश्मन थे, अगर उस लड़ाई को तुम मजहबी रंग दोगे तो कभी इत्तेहाद पैदा नहीं होगा। अगर उस लड़ाई को तुम मजहबी रंग मत दो। अगर मजहबी रंग रहता तो गुरु गोविंद सिंह की फौज में, गुरु गोविंद सिंह जी की फौज में जो है मुस्लिम जो है सिपाही थे, और औरंगजेब आपकी जो है फौज में सिख सिपाही मौजूद थे। उसके बाद जब फसाद छिड़ गया तो गुरु गोविंद सिंह जी को पनाह देने वाले कौन थे? 2 भाई, नबी खान, गनी खान। ये 2 भाई लेकर आपको जो है पटना साहब गए, और वहां पर जो है आज भी गुरु के बाग के नाम से मशहूर है। वो उस जमाने में जायदाद जमीन को नजर करते थे। आप जब 2 भाई नबी खान, गनी खान गुरु गोविंद सिंह जी को जो है आप लेके गए अपने गांव को, तो वहां पर जो है आप अपने बाग को जो है गुरु के हवाले कर दिए। उसके बाद उसका नाम गुरु का बाग पड़ गया। इसलिए बाबा गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, तवारीख गुरु खालसा,
صفحہ نمبر 406 میں صاحب دا فرمایا لکشہ وچ قرآن بنا عبادت بندگی ہو رہے عمل شیطان. اللہ کا فرمان قرآن کریم میں لکھا ہے بندگی اور عبادت اللہ کی رضا جو ہے سب شیطانی عمل ہے. یہ حقیقت میں جو ہے تمام انسانوں کو جو ہے ایک دعوت دیا جاتا کہ تم اللہ کی بندگی کرو, ایک اومکار کی اپاسنا کرو, ایک ایشور کی پوجا کرو. ہندوستان کی مذہبی کتاب میں لکھا گیا ہے ایک یو نہ دتیو تستے نہ برہما نہ وشنو نہ سوریو نہ اگنی نہ چندر تارکا, وہ ایک ہے تب سے جب کائنات کی کوئی چیز نہیں تھی. اسی کو بابا گرو نانک دیو جی رحمت اللہ علیہ جو ہے آپ اپنی زبان میں فرمایا کہ محمد من تو من کتاباں چار من خدا رسول سچائی دربار. شیخ فرید صاحب کی جو وانی جو ہے گرو مکھی زبان میں آیا جس کو ہمارے ہر سکھ بھائی جانتے ہیں, جو مسلم اس میں دلچسپی رکھتے وہ بھی واقف ہے کہ فرید نامہ ایک چاپٹر ہے گرو گرنتھ صاحب میں, اس میں بیان کیا گیا ہے اے فریدہ بے نمازے کتیا یہی پلی نرید کبھی چل نہ آئے پنج وقت مسجد. اے فریدہ بے نمازی کتا ہے, یہ طریقہ غلط ہے کہ کبھی چل کر 5 وقت مسجد میں نہ آیا ہو. اے فریدہ اٹھ فریدہ وضو ساتھ صبح نماز گزار جو سر سائے ننے میں سو سر کا پتار. اے فرید اٹھ وضو کر صبح نماز پڑھ جو سر اللہ کے سامنے نہ جھکے اس سر کو اتار دے. کنے ہیٹ جلائیں بالن سنرے ٹھاتے ایسے سر کو چولہے میں ہنڈیا کے نیچے استعمال کرو. تو بابا گرو نانک دی جو فرماتے ہیں پنج نمازاں وقت پنجے پنجا ناؤ, پہلا سچ حلال دوئے, تیجا خیر خدائے, چوتھی نیت راس من, پنجویں صفت سنائے, کرنی کلمہ آگ کے تا مسلمان صدائے, نانک جیتے کوڑی کوڑی پائے. تو ٹھیک حقیقت میں بابا گرو نانک کا یہی پیغام ہے کہ آپ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان میں جو ہے کیا ہے پنجابی زبان میں. ہمارا مقصد یہی ہے کہ تمام ہندوستان کے بسنے والے جو ہے واسی ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے. ہمارا اسی لیے جو ہے اس پروگرام کو رکھا جاتا ہے. بہرحال دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد گرو پرماتما سے ہم تمام انسانوں کو ایک کر دے, ایک پلیٹ فارم پر لائے اور اپنی اپاسنا کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین.